یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. خبرنامے کے ساتھ میں ہوں سید تجمل قادری. پہلے ہیڈ لائنز. 23 ملکوں کے الیکشن مینجمنٹ اداروں سے تعلق رکھنے والے 75 مندوبین لوک سبھا انتخابات کا بذات خود مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچے بھارت. 18ویں لوک سبھا انتخابات کے باقی مرحلوں کے لیے چناؤ مہم تیز. سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی کے مطابق پچھلے 10 برسوں کے دوران 25 کروڑ لوگوں کو لایا گیا غربت کے دائرے سے باہر. اور چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تحت ہاتھ میں لیے گئے کاموں کا لیا جائزہ. اہم کاموں کو فوری طور مکمل کرنے کی دی ہدایت. اور ملک میں میڈیکل کالجوں میں داخلے کے لیے نیٹ امتحان کل. امتحان میں 24 لاکھ سے زائد امیدوار ہو رہے ہیں شامل. خبریں تفصیل کے ساتھ. 23 ملکوں کے الیکشن مینجمنٹ اداروں سے تعلق رکھنے والے 75 بین الاقوامی مندوبین لوک سبھا انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھارت پہنچ گئے ہیں. الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اعلی معیار کے عام انتخابات منعقد کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کرنے کے لیے ان مندوبین کو مدعو کیا ہے تاکہ وہ بذات خود دنیا کے اس بڑے جمہوری عمل کا مشاہدہ کر سکیں. اپنے دورے کے دوران یہ مندوبین آج سے شروع ہونے والے 6 روزہ پروگرام میں شرکت کریں گے. آکاشوانی کے نمائندے نے خبر دی ہے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ پروگرام کے دوران ان غیر ملکی الیکشن مینجمنٹ اداروں کو بھارت کے الیکٹورل نظام اور اس کے طور طریقوں سے روشناس کرایا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نیز الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور ڈاکٹر سکھبیر سنگھ ساندھو مندوبین سے کل خطاب کریں گے، جس کے بعد یہ مندوبین 6 ریاستوں مہاراشٹر، گوا، گجرات، کرناٹک، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش کا دورہ کر کے وہاں چناؤ عمل کے ساتھ ساتھ مختلف حلقوں میں کی جا رہی تیاریوں کا مشاہدہ کریں گے. ان کا پروگرام رواں مہینے کی 9 تاریخ کو اختتام پذیر ہوگا. ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ 18ویں لوک سبھا انتخابات کے باقی مرحلوں کی چناؤ مہم میں تیزی آ گئی ہے. مختلف سیاسی پارٹیوں کے اعلی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ نامزد امیدوار جگہ جگہ چناؤ ریلیوں اور روڈ شوز کا انعقاد کر کے اپنی اپنی پارٹیوں کے منشور لوگوں کے سامنے رکھ کر رائے دہندگان کو راغب کرنے کی جی توڑ کوششیں کر رہے ہیں. بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جھارکھنڈ کے پالامو اور گملا ضلعوں میں چناؤ ریلیوں سے خطاب کیا. اس موقع پر نریندر مودی نے کہا کہ این ڈی اے کی پچھلے 10 برسوں کی حکمرانی کے دوران 25 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے باہر آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں عملائی جا رہی مفت راشن اسکیم اگلے 5 برسوں تک جاری رہے گی. بی جے پی لیڈر نے مزید کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ غریبوں کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہو. انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت کے دوران صرف امیر لوگ ہی اس سہولت سے استفادہ کرتے تھے. انہوں نے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ قبائلی ضلعوں کی پسماندگی کی ذمہ دار ہے. نریندر مودی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جمہوری عمل میں ایک ایک ووٹ کی اہمیت کو تسلیم کریں. انہوں نے کہا کہ ووٹ کی بدولت ہی جموں کشمیر میں دفعہ 370 کی تنسیخ، دہشت گردی کا خاتمہ اور رام مندر کی تعمیر ممکن ہو پائی ہے. ملک میں 18ویں لوک سبھا انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 7 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے. تیسرے مرحلے میں 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے میں 93 پارلیمانی حلقوں میں رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر کے امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے. 18ویں لوک سبھا انتخابات کے چوتھے مرحلے کے لیے 10 ریاستوں اور یوٹیز میں رائے دہندگان 13 مئی کو 1717 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ووٹنگ مشینوں میں بند کریں گے. اسی مرحلے کے تحت جموں کشمیر کے سری نگر پارلیمانی حلقے میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے. اس حلقے کے لیے 24 امیدوار اپنی سیاسی قسمت آزما رہے ہیں. حلقے میں رائے دہندگان کی کل تعداد 17,44,027 ہے، جن میں 8,74,448 مرد ووٹر جبکہ 8,69,916 خواتین ووٹر شامل ہیں. 18 اسمبلی نشستوں پر مشتمل سری نگر پارلیمانی حلقے میں ووٹروں کی سہولت کے لیے 2135 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں. 5ویں مرحلے کے پارلیمانی انتخابات کے لیے داخل کیے گئے کاغذات نامزدگیوں کی آج جانچ پڑتال ہوئی. کل کاغذات داخل کرنے کی آخری تاریخ تھی. اس مرحلے کے تحت 8 ریاستوں اور یوٹیز میں 49 پارلیمانی حلقوں میں 20 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے. ان حلقوں میں یو پی کی 14، مہاراشٹر کی 13، مغربی بنگال کی 7، اڈیشہ اور بہار کی 5-5، جھارکھنڈ کی 3 نشستوں کے علاوہ جموں کشمیر اور لداخ کی ایک ایک پارلیمانی نشست پر پولنگ ہوگی.
बारामूला पार्लिमानी हलके के लिए कुल 38 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे। आज इन कागजात की जांच पड़ताल हुई, जिस दौरान 23 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त पाए गए जबकि 15 उम्मीदवारों के कागजात रद्द किए गए। इस हलके में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन और पीडीपी के मीर फयाज नुमाया है। जम्मू कश्मीर यूटी में पार्लिमानी इंतखाबात के अहसन, शिफाफ और पुरअमन इनेकाद के लिए सलामती समेत तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और राय दहिंदगान की सहूलत के लिए पोलिंग मराकज पर हर तरह की सहूलियात बहम कराई जा रही हैं। जिस्मानी तौर खास अफराद और बुजुर्ग शहरियों के लिए रैंप और व्हील चेयर्स दस्तियाब रखी जा रही हैं। इसके साथ साथ स्वीप के तहत तमाम जिलों में इख्तराई प्रोग्रामों का इनेकाद भी जारी है ताकि लोगों, खासतौर से ख्वातीन और नौजवानों में वोट की अहमियत के हवाले से बेदारी पैदा की जा सके और इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वोटर ज्यादा से ज्यादा तादाद में दुनिया के इस बड़े जमहूरी अमल के शराकतदार बने। बारामूला पार्लिमानी हलके के लिए नामजद पुलिस ऑब्जर्वर रविशंकर छाबी ने आज बारामूला में काउंटिंग सेंटर और स्ट्रांग रूम का दौरा करके वहां चुनाव के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती की शिफाफियत को बरकरार रखा जाना चाहिए, नीज सलामती के लिए खातिरखा इकदाम किए जाने चाहिए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। उनके हमरा चुनाव अमल से जुड़े मुख्तलिफ अफसरान भी थे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गाजीपुर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र सम्मान समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मयारी तालीम का बुनियादी मकसद तलबा को बाइख्तियार बनाना है ताकि वो कौम की तामीर के साथ साथ समाज की तवक्कुआत को पूरा करने में एक कलीदी रोल अदा कर सकें। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज शहर श्रीनगर का तफसीली दौरा करके शहर में स्मार्ट सिटी के तहत अमलाए जा रहे मुतादिद कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने खास तौर से बुलवार्ड रोड, मुगल बागात, फोरशोर रोड, शालीमार कनाल, जहांगीर चौक जंक्शन और प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मुतल्लिका अफसरों पर जोर दिया कि वह हाथ में लिए गए कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि खास तौर से शहर के मसरूफ तरीन इलाकों में हाथ में लिए गए कामों में सुरत लाई जानी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। उन्होंने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अफसरों को हिदायत दी कि वो इन कामों की बजाते खुद निगरानी करें। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के अलावा कई दीगर सिविल व पुलिस अफसरान उनके हमरा थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कई चुनाव जलसों का इनेकाद किया गया। एक जलसे से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा इंतजामिया की बकौल उनके गलत पॉलिसियों से लोगों को गूनेगो मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाकर लोगों के हकूक की तर्जुमानी करती रहेगी। इन जलसों से पार्टी के श्रीनगर हल्के के नामजद उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने भी खिताब किया। दरियासना पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में चुनाव जलसों से खिताब किया। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि रवायती पार्टियों ने श्रीनगर शहर के लोगों को अपने मकासद के लिए मुश्किलात से दो चार किया। आज हबकदल में एक पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि इन पार्टियों ने लोगों को अपने हकीर मकासद हासिल किए। उन्होंने कहा कि शहर के नौजवानों को मुनासिब रोजगार नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी लोगों की बहबूदी के लिए काम करती रहेगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में दाखिले के लिए कल मुल्क भर में नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद कर रहा है। इस साल मुल्क भर से ताल्लुक रखने वाले 24 लाख से जायद उम्मीदवार इस इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं और मुल्क के 14 शहरों में इस मकसद के लिए 557 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। यह इम्तिहान दोपहर 2 बजे से 5:20 तक मुनक्किद किया जाएगा। एनटीए ने उम्मीदवारों को हिदायत दी है कि वो अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें जिन पर उम्मीदवार का फोटोग्राफ, दस्तखत और रोल नंबर बारकोड नुमाया तौर से दिखता हो।
भारत ने कहा है कि ऑनलाइन इंतहा पसंदी आलमी सिक्योरिटी मंजरनामे के लिए लगातार एक बड़ा चैलेंज है। लेवन फ्रांस में हाल ही में इख्तिताम पजीर हेड्स ऑफ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के सरबराहों की 19वीं इंटरपोल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीबीआई के डायरेक्टर प्रवीण सूद ने जराइम, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका नजरिए से पैदाशुदा चैलेंजों को उजागर किया। उन्होंने तमाम सतहों की दहशतगर्दी की यकसू मजम्मत करते हुए कहा कि मुख्तलिफ किस्मों की दहशतगर्दी को एक ही नजरिए से देखा जाना चाहिए। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में 136 मुल्कों के कौमी सेंट्रल ब्यूरो ने शिरकत की, जिनकी नुमाइंदगी सीनियर पुलिस अफसरों ने की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के अपने 5 रोजा दौरे पर आज सुबह शिमला पहुंच गईं। कल्याणी हेलीपैड पर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सदर जमहूरिया ने के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आकाशवाणी की नामनिगार ने खबर दी है कि कल सदर जमहूरिया कुफरी के कैंपमेंट इलाके का दौरा करेंगे, जबकि 6 मई को वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ धर्मशाला में कन्वोकेशन तकरीबात में बहसत मेहमानी खुसूसी शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे के पेश नजर हिमाचल प्रदेश में सलामती के खातिर खा इंतजामात किए गए हैं। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज पुलवामा जिले का दौरा करके जिले में सेरिकल्चर शोबे की पेशरफ्त और बुनियादी ढांचे का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुंजाए अब्रिशम के शोबे में रोजगार के काफी वसाइल मौजूद है और उनका महकमा इस सन्नत से जुड़े अफराद और बेरोजगार नौजवानों के लिए मुतादिद स्कीमें अमला रहा है। दाहरमुना बड़गाम में कल हजरत सैयद अब्दुल करीम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयद मोहम्मद सालेह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आस्ताने आलिया पर नमाज असर के बाद खतमातुल मुअज्जमात और दरूद अज़कार की मजालिस आरास्ता होंगी। मरकज ने आज से प्याज की बरामदात से पाबंदी हटाने का फैसला किया है। एक नोटिफिकेशन में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कहा है कि यह हुक्मनामा फौरी तौर से लागू होगा और प्याज की बरामदादी कीमत कम से कम 550 अमरीकी डॉलर फी टन मुकर्रर की है। पिछले महीने मरकज ने 6 मुल्कों बांग्लादेश, मुत्तहिदा अरब अमारात, भूटान, बहरीन, मराकश और श्रीलंका को 99,000 मीट्रिक टन प्याज बरामद करने की इजाजत दी थी। पिछले बरस दिसंबर महीने में हुकूमत ने प्याज की बरामदात पर पाबंदी आयद की थी ताकि घरेलू सतह पर इसकी वाफिर मिकदार में दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके। सरहदी सड़क तंजीम प्रोजेक्ट स्वास्तिक ने अपने 65वें यौम तासीस के सिलसिले में आज कई सरगर्मियों का इनेकाद किया, जिनमें इस अहम तंजीम के आला मयार के काम को उजागर किया गया, जिनमें बाइक रैलियां, वॉकथॉन और कई दीगर करतब शामिल थे। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खबरों के इख्तिताम से पहले सुर्खियों पर फिर एक नजर। 23 मुल्कों के इलेक्शन मैनेजमेंट इदारों से ताल्लुक रखने वाले 75 मंदूबीन लोकसभा इंतखाबात का बजाते खुद मुशाहिदा करने के लिए पहुंचे भारत। 18वीं लोकसभा इंतखाबात के बाकी मरहलों के लिए चुनाव मुहिम तेज। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुताबिक पिछले 10 वर्षों के दौरान 25 करोड़ लोगों को लाया गया गुर्बत के दायरे से बाहर। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत हाथ में लिए गए कामों का लिया जायजा। अहम कामों को फौरी तौर मुकम्मल करने की दी हिदायत। और मुल्क में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट इम्तिहान कल। इम्तिहान में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार हो रहे हैं शामिल। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।